آگے سے تاکہ آواز بھی بیٹھ جائے. کیمرے نے اگے والا اسٹیبل رکھے. ویسے چینل اور دیں گے کہ رکھ لے ہاتھ چاہ. بھائی تھوڑا سا سائڈ پر جب بھائی کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ. جی میں کرنا میں رکھنا ہے یہ بھی رکھنا ہے تو میں اس طرح لاسا ہوا قریب سے لینا نا تاکہ آواز بھی آئے. بے شک آگے تھوڑا سا ہاں بول پتا کری دستا ہے. ویڈیو بنا رہے ہیں لائن سائڈ سے کریں یہ ادھر بیٹھتا ہوں کوشچن کرنا. کیا کرنا ہے؟ کوشچن پھر لاسٹ میں کرنا ہے نا بیٹھنا. میں اٹھ جاؤں گا. 48 45 16 ٹھیک ہے. اٹھارہ 20 25 1
گیا اس طرح کے پاس بٹن بند بھی تھا جی اگر لاؤڈلی بولیں تو ویسے بھی آ جائے گی نا. اچھا لاؤڈلی چلے بولیں تو ان کیس ہاں اس سے زیادہ وہ ایمپلیفائی ہو جائے افیکٹو ہے جی. آن ہے اس کو اچھا یہ اس میں دوسرا والا ہے دوسرا لگتا ہے اس میں دوسرا لگتا ہے اس میں یہ نہیں لگے گا چلے کوئی نہیں لائٹ چلا سو لوگوں ہی نظر بس اسی طرح ایسے ہی چلو ٹھیک ایسا وہی چلنا آگے تو جتنا آگے سہیل بھائی اور دیکھو کلوز ڈاؤن کلوز تھا آواز تھوڑا اچھا جی جتنے مطلب ویٹ جانا اوکے سارے بھائی تیار ہیں سہیل بھائی تھوڑا آگے تھوڑا برابر ہی ہے آواز آ رہی ہے ہاں جی آواز ٹھیک ہے سارے بھائی تیار ہیں جی بس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جب جیسے آپ کو یوں کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جو ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو جان کے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ میری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اس سے پہلے جب بھی مجھے کوئی عام پیغام حکومت کو یا عوام کو پہنچانا ہوتا تھا میں پریس کلب مری کا سہارا لیا کرتا تھا کیونکہ پریس کلب مری ایک بڑا پاورفل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا ہب ہے. لیکن الحمدللہ اب پریس کلب کوٹلی ستیاں بھی ماشاءاللہ ایک بڑا متحرک پریس کلب بن چکا ہے. اس کے لیے بھی میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ نیا نہیں ہے, پرانا سبجیکٹ ہے, لیکن اس سبجیکٹ کے اندر ہم نے جان ڈالنی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ پریس کلب کوٹلی ستیاں اس سبجیکٹ کو بہتر انداز میں عوام تک اور حکومت تک اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. The subject is bulk water supply project, جو کہ بہت پرانا سبجیکٹ ہے اور آپ میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں اس چیز کو جانتے ہیں کہ 2002 سے 2005 کے درمیان یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت, جس کا مقصد دریا جہلم سے پانی پمپ آؤٹ کر کے مری, پتریاٹا اور کوٹلی ستیاں کو پانی فراہم کیا جانا تھا. 2005 کے زلزلے کے بعد اس پروجیکٹ کو ارتھ کو ایک پروف بنانے کے لیے اس کے بجٹ کو ریوائز کیا گیا
और 2 अरब से ये तकरीबन 4.25 अरब इसकी लागत कर दी गई और काम शुरू हो गया और बहुत सारी मशीनरी साइट पे पहुंचा दी गई। पाइप्स आपने देखा होगा अभी भी सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं और लोगों की ज़मीनें एक्वायर की गई और इस तरह टोटल तकरीबन 1.8 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च हुए और 2005 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ऑन इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और 2007 में जब का ये प्रोजेक्ट था, जब वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पहले बंद किया। उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन हो रही है, ये करप्शन का गढ़ है ये प्रोजेक्ट, लिहाजा इसको बंद करके हम इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया और उसके लिए मज़ीद 500 मिलियन रुपए यानी 5 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए और उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया। बाद में बगैर कोई वजह बताए इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया और फिर इसको एक ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल करके मरी पहुंचाने की तकोदो भी की गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं होने दी गई और प्रोजेक्ट को अपनी शक्ल में बहाल किया गया। लेकिन जो प्रोजेक्ट बंद किया गया उसके खिलाफ मैंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की कि ये प्रोजेक्ट उनके इंसानों के पीने का पानी है इस प्रोजेक्ट का मकसद, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्तों ने ये जानते हुए कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, उन्होंने इसके बाद हाई कोर्ट में रिट्स कर दी। मुझे नहीं पता कि वो असल में इस प्रोजेक्ट को बहाल करवाना चाहते थे या मेरी पिटीशन को वो नाकारा बनाना चाहते थे। बहरहाल चूंकि हाई कोर्ट में वो पिटीशन लग चुकी थी, इसलिए हमारी पिटीशन को भी दोबारा हाई कोर्ट में भेज दिया गया और 2012 में ये सारी पिटीशंस इनका एक ही ऑर्डर हुआ और उस वक्त की पंजाब हुकूमत जो कि नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने कमिटमेंट दी कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उनकी इस कमिटमेंट के बाद मैंने अपनी पिटीशन जो है वो वापस ले ली। तो 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद वो प्रोजेक्ट बहाल ना हुआ ऑन ग्राउंड। ये मैं आपको बताता चाहूँ कि हमने अपनी पिटीशन में उसके ऊपर स्टे भी लिया हुआ था। अगर हम स्टे ना लेते, ये मेरे लेफ्ट राइट हाजी साहब बैठे हैं, गुलजार साहब, ये दिलशाद साहब बैठे हैं, ये को पिटीशनर है, ये हमारे इलाके के मेरे साथ ही पिटीशनर हैं इस प्रोजेक्ट के। तो हमने इसके ऊपर स्टे ले लिया कि इस प्रोजेक्ट का जब तक फैसला होता, इसकी कोई भी मशीनरी या पाइप या कोई भी कंपोनेंट जो है वो जमीन से या उस साइड से नहीं हिलाया जाएगा। अगर ऐसे ना होता तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने तकरीबन 3 या 4 करोड़ रुपए का एक बजट मंजूर करवाया हुआ था, जिसका टाइटल टू डिसमेंटल द प्रोजेक्ट था, यानी उस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करके उसको वापस उसके पाइप, उसके जनरेटर, उसका सारी चीज़ें वापस ले जाना मकसूद था। लेकिन वो स्टे होने के बाद या स्टे होने की वजह से वो वहाँ से कोई चीज़ मूव नहीं कर सके। तो बहरहाल फिर हमने 2014 या 15 में दोबारा पिटीशन शुरू कर दी 16 में कि जनाब ये पंजाब की हुकूमत ने इसको बहाल करने का वादा किया था, कमिटमेंट की थी कोर्ट के अंदर और ये प्रोजेक्ट अभी तक बहाल नहीं हुआ। और उसके बाद वो जो पिटीशन है, चूँकि हमारी जो अदालती निज़ाम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, कभी जज साहब नहीं होते, कभी वकील साहब नहीं होते, कभी लेफ्ट ओवर हो जाता है। तो बहुत ही तकोदो के बाद उसको हम केस को लगवाते थे, फिर खासा उसमें एक्टिविटी क्रिएट हुई। लेकिन फिर चूँकि 2018 में इलेक्शन आ गए तो
तो इलेक्शन में हमारी पार्टी जो है PTI, उसका ये बुनियादी जो मैनिफेस्टो था, जो मंशूर था, उसमें इस प्रोजेक्ट को बहाल करना प्राइम प्रायोरिटी थी। उन्होंने कहा था, खासतौर पे हमारे जो उम्मीदवार थे कौमी सूबाई असम्बली के, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि मेरा पहला यही काम होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को बहाल करूँगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इसको बहाल कराने की कोशिश भी की है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान में बहुत ताकतवर है, वो हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी बात चलने नहीं देती। तो मैं इस मामले में जो इस महकमे के सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिला हूँ, जो वजीर हैं उनसे भी मिला हूँ, जो कमिश्नर साहब हैं उनसे भी मिला हूँ, DC साहब हैं उनसे भी मिला हूँ। लेकिन पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो कम से कम कहती थी हम इसको बहाल करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है और इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को बहाल नहीं करना चाहते। ये हमारी हुकूमत को, हमारी पार्टी की हुकूमत को बने हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने अपनी पिटीशन को रोका हुआ था और जितने भी मुतल्लिका लोग थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो अब मैं तमाम हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनसे या उनकी तरफ से जो रिस्पांस आना था उससे मैं मायूस होके दोबारा इस पिटीशन को बहाल करके इसको दोबारा अपनी ही पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मैं दोबारा ये कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ कि चूंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर टैक्स पेयर्स का 1.8 अरब रुपए खर्च हो चुका है। दूसरा, ये इंसानों के लिए पीने के पानी का प्रोजेक्ट है। मरी और कोटली सतिया में सोए चंद चश्मों के कोई अल्टरनेट पानी का सोर्स नहीं है, इसलिए ये फिजिबल है या नहीं है, इसको हम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि इसको बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएं। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है कि आप लोग अपने कलम का इस्तेमाल करते हुए, अपने मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस हमारी इस्तदा को उजागर करें कि ये प्रोजेक्ट इंसान के लिए सबसे जो जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद पानी। अगर एक गवर्नमेंट या एक घर या एक आदमी कहता है जी कि ये पीने का पानी जो है, ये बोतल पानी जो है ये मेरे लिए फीजिबल नहीं है, मैं इसको नहीं खरीद सकता, तो अवाम पानी कहाँ से पिएंगे? ये कई दफा सर्वे में ये बात हो चुकी है कि बड़ी कोटली सतियाँ उसके गिरदोनवा में पानी का मुतबादिल बंदोबस्त नहीं है। दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर जो इन इलाकों को सप्लाई कर सकता है पानी। इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। 1.9 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट अब मेरे ख्याल से 20 अरब का बन चुका है, और 20 अरब को की कॉस्ट बढ़ाने वाली कौन है? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी। और हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी या तो दिलचस्पी नहीं होती या वो ब्यूरोक्रेसी के कलम का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रोज बरोज इसकी जो कॉस्ट है इसमें इजाफा हो रहा है। 1 अरब का प्रोजेक्ट ये 20 अरब का बन चुका है, और अपनी नालायकी को, क्योंकि उनको पता है कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो उनको इसका हिसाब भी देना पड़ेगा कि ये 2 अरब का प्रोजेक्ट 20 अरब का किसने बनाया, क्यों बनाया। इसलिए वो ये सारे ड्रामे रचा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल नहीं है। मैं ये सवाल करता हूँ कि यहाँ पे पिंडी में कई पुल बने हुए हैं और बन रहे हैं, और एक पुल बिलियंस ऑफ रुपीस का, अरबों रुपए का एक पुल बन रहा है, क्या वो फिजिबल है? उसको गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी? तो जब हमारे लिए पीने के पानी की बात आती है तो उसकी फिजिबिलिटी और उसकी जमा तफरीक और उसके नफा नुकसान को क्यों देखा जाता है? हम इंसान हैं, हमें पानी चाहिए, ऑक्सीजन के बाद तो पानी की जरूरत है, तो ये फिजिबल है या नहीं है? इसको फिजिबल की कैटेगरी में मत ले जाया जाए, इसको नफा और नुकसान की बुनियादों पर मत परखा जाए। ये कोटली सतियाँ, मरी और इस इलाके के लोगों के लिए, इस इलाके में टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, लिहाजा हम इसकी बहाली चाहते हैं और मीडिया की हम इस
अपनी जो प्ली है इसको उजागर करने के लिए, अवाम तक पहुंचाने के लिए, हुकूमत तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की मदद के तलब ला रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल है। ये प्रोजेक्ट 75 मिलियन गैलन पर डे इसकी कैपेसिटी है और मरी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो तकरीबन 25 मिलियन पर गैलन 2025 में होगी, अभी इससे भी कम। तो 50 मिलियन गैलन पर डे आपके पास एक्स्ट्रा पानी। ये यहाँ पे एक 2-4 डैम बनाया जा रहा है 7 या 8 अरब रुपए। मकसद क्या है? बारिश का पानी कैच करके पिंडी के लोगों को वो पानी सप्लाई किया जाए। तो भाई खुदा के बंदो, आंखें खोलो, कोई तवज्जो दो कि इसी प्रोजेक्ट का जो 50 मिलियन गैलन पर डे जो एक्स्ट्रा पानी है, इसको शहर से आधे खर्चे में यहाँ लाया जा सकता है, पानी भी उस बारिश से ज्यादा होगा। इस तरह सीडीए को ये पानी बेचा जा सकता है। तो इसकी फिजिबिलिटी अगर बनाने में हमारी राय ली जाए तो हम इसको उनको फिजिबल बना के बताएंगे। बिजली का बिल कहते हैं जी, बिजली का बिल आ जाएगा और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि वहां पे दरिया का पानी है और पानी वाटर ड्रिवन टर्बाइन लगा के बिजली वहीं पे पैदा करें, ना आपका बिल आएगा और ना मेंटेनेंस और उसके ऑपरेशन की कॉस्ट होगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को फिजिबल बनाया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को इस इलाके की तकदीर को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ टूरिज्म आप मरी जाएं, वहाँ पे जनाब आपको जो पीक सीजन है वहाँ पे हो सकता है 500 रुपए में आपको पानी की बोतल न मिले। तो मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को अच्छा महसूस नहीं कर रहा कि मैं अपनी ही पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आज इस प्रोजेक्ट को बहाल कराने के लिए दोबारा अदालत में जाने का ऐलान कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये केस लगा हुआ है। मैं अभी अपने जो आप लोगों को वक्त दिया था उससे आधा घंटा थोड़ा सा ताख़ीर मुझे हुई है। मैं वकील साहब के साथ बैठा हुआ इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा था और तैयारी कर रहे थे कि हमने सुबह वहाँ पे क्या प्ली लेंगे। तो ये हमारी प्ली है कि ये प्रोजेक्ट पहले तो फीजिबल है, इसको आप फुल कैपेसिटी पे चला के रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को, कोटली सतिया को, मरी को हर घर पानी के लिए बिल भी देने के लिए तैयार है। इसको फिजिबल बनाया जा सकता है और जहाँ पे इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, अगर हमारी राय को उसमें लेना चाहें तो हम राय भी देने के लिए तैयार है कि वो फिजिबल कैसे बन सकता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी एक टरबाइन वहाँ पे लगा लें, इसका बिजली का बिल नहीं आएगा, उस बिजली का टरबाइन की जो कॉस्ट है वो आएगी। और तीसरी बात कि सिर्फ मैंने पिछला जो माली साल गुजरा है उसमें 75 लाख रुपए टैक्स दिया। इसी तरह हमारे दूसरे लोग भी टैक्स देते हैं। तो ये लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है। यहाँ के लोग फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर, बैरून ममालिक के अंदर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और उन तमाम लोगों का ये हक है, ये राइट है कि उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। और इस हक को न देना इस बुनियाद पे कि फिजिबल नहीं है या ये कॉस्टली है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंसानी हुकूक हैं जिसकी जमानत पाकिस्तान के आइन के अंदर दी गई है उसके खिलाफ ये चीज़ है। और हुकूमत वक्त से मेरी इस्तदा है कि ये ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से बाहर निकलकर अवाम की बात सुने और इस प्रोजेक्ट को बहाल करें ताकि हम लोग भी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह साफ पानी पी सकें। यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था और यही मेरी इस्तदा थी। आप लोगों में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो। अच्छा सर, अभी आपसे मेरे मीडिया के भाई जो है वो सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं तो सिद्धार्थ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हिस्से का सवाल कीजिए सर। अदर भाई, अरुण भाई आप पूछना चाहें तो मुझे। जावेद इकबाल साहब, आपने अपनी ज़ाती काउंसू से डांडा छिजाना रोड भी मंजूर करवाई जिसमें आपकी एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स शामिल हैं।
क्या वही एफर्ट्स आप शामिल करके आप इस प्रोजेक्ट को बहाल नहीं करवा सकते बजाय आप कोर्ट में जाने के? जी, मैं इससे पहले ये गुजारिश कर चुका हूँ कि मैं इस सिलसिले में जो इस महकमे के सेक्रेटरी साहब उनसे भी मुलाकात कर चुका हूँ, जो वजीर हैं उनसे भी मुलाकात कर चुका हूँ, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर चुका हूँ। चूँकि जो रोड है वो तकरीबन 10 करोड़ उसका बजट था, लेकिन इसका बजट 10 अरब है, इसलिए मेरे ख्याल से मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उसमें कहा है कि मैं हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस है इस प्रोजेक्ट को बहाल करने का, उससे मायूस होकर फिर कोर्ट की तरफ 2 साल तक मैं इंतज़ार करता रहा हूँ कि शायद हमारी हुकूमत उस मंशूर के ऊपर अमल दरामद करे जो इलेक्शन में हमने लोगों को दिया। पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आप गवर्नमेंट से भी जो है अभी मायूस होकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप दोबारा कोर्ट में ऑप्टिमिस्टिक है कि आप कुछ मिलेगा कोर्ट से? देखें, अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगी तो मैं घर नहीं जाऊँगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर तो मैं यहीं बैठा रहूँगा। लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, वो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि कायदे-ए-आज़म ने जैसे फरमाया थी कि आप अपना एक नस्बुल ऐन मुकर्रर कर लें, अपना टारगेट मुकर्रर कर लें, अपना हदफ मुकर्रर कर लें कि आपने क्या करना है। फिर उस टारगेट, उस नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए आपको तकलीफ भी होगी, आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, आपको मुश्किल का भी सामना करना पड़ेगा। आप अपना पूरी ईमानदारी से, नेक नीयती से, अच्छे अंदाज में अपने केस को हम प्लीड करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारा मेरिट के ऊपर केस है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हमले हाल होगी। और पहले से हम ये कुछ नहीं कह सकते कि वो बहाल होगा या नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है और वो हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक तो मैं नवीद भाई जी, जावेद साहब, मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए जो माली साल 2020-21 था उसमें उनका ये ऐलान था कि हमने 50 लाख रुपए फंड रखवाए हैं। तो आज आपकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि इसको तो मौजूदा हुकूमत ने तो ये करा दिया कि ये फिजिबल ही नहीं है। तो क्या उनका जो बयान था वो दुरुस्त नहीं है, या जिस तरह आज भी MPA साहब की एक स्टेटमेंट चल रही है सोशल मीडिया पे, जैसे देखा गया कि उन्होंने बल्क वाटर के हवाले से गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है, या अपने हल्के के जो पानी के जो मसाइल थे उनके हवाले से बात की है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली जब नून लीग की हुकूमत ने डिसमेंटल किया था, इसको कैप किया था, इसको बंद किया था, तो उसके खिलाफ मैंने स्टे लिया हुआ। उस स्टे की वजह से ये प्रोजेक्ट सरकारी कागजों में अभी तक बंद नहीं हुआ। इसलिए हुकूमत वक्त को हर साल बजट में इस पे कुछ न कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। जो नून लीग का आखिरी साल था उसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन रुपया रखा, लेकिन वो बिलियन रुपया है जो 50 करोड़ उन्होंने रखा है, वो प्रोजेक्ट चूँकि ऑफिशियली ओपन है, ऑन गोइंग स्कीम है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर रखा जाता है, वो खर्च नहीं होता, और वो जब साल खत्म होता है वापस चला जाता है। इसके अलावा जो बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के जो जनरेटर वगैरह वहाँ पे रखे थे, या जो इसकी बिजली के लिए जो पैसे रखे गए थे वो बाद में बिजली की मुख्तलिफ इलाकों में स्कीमें दे दी गई थी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये उसके बाद ये केस शुरू किया गया जब इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करके इसके पैसों को छोटे छोटे मंसूबों में तकसीम करने की शुरुआत हुई थी। उसी के खिलाफ ये रिट है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है कि वो जो लोग जिन्होंने ये प्रोजेक्ट के पैसे अनऑथराइज्ड एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जाते, तो वो सारा इसमें। अगर हुकूमत की तरफ से आपको ये यकीन दहानी करवा दी जाती है कि हम माली साल 21-22 में इसके लिए कुछ रकम रख लेते हैं, तो उस सूरत में आप आपके केस की क्या सूरत हाल होगी? आप केस वापस लेंगे या उसको जारी रखेंगे? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस सूरत हाल का इससे पहले नून लीग की हुकूमत ने हमें वादा किया था कि हम इस प्रोजेक्ट को बहाल करेंगे, और कोर्ट के अंदर किया था। कोर्ट के अंदर किया था, और वो प्रोजेक्ट बहाल नहीं हुआ। तो इस दफ़ा अगर हुकूमत ऐसा करती है तो हम इसको बड़ा वेलकम एक चीज़ कहेंगे, लेकिन साथ ही हम कोर्ट से कहेंगे कि हुकूमत को बाइंड करेंगे कि आपने कब शुरू करना है और कब खत्म करना है।
अच्छा जी, अभी इजाज़त नहीं दी। अच्छा, अभी सर मेरा ये सवाल है कि ज़ाहिर सत्ती दिन न्यूज़ से मेरा तल्लुक है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, एक तो आप हुकूमती जमात से तल्लुक रखते हैं और आपकी हुकूमती जमात के ही MNA सदाकत अली भाई साहब हैं, MPA मेजर तरसती साहब हैं, समाबिया ताहिर हैं, आबदा राजा, 4 आपके हुकूमती जमात के नुमाइंदे असम्बलियों में मौजूद हैं। उन्होंने के सामने आपने बल्क वाटर स्कीम को रखा है, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? और दूसरा कि आपको ये क्यों जरूरत पेश आई कि अपनी हुकूमत के रहते हुए कोर्ट में जाना पड़ गया? इस हवाले से आप जरा थोड़ी रोशनी जी, मेरी सदाकत अली अब्बासी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सूबाई सब्जेक्ट है, ठीक हो गया, और ये इसका सारा इख्तियार जो है वो MPA साहब, MPA साहब से इस हवाले से मेरी बात नहीं हुई है डायरेक्टली, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि उन्होंने इसको बहाल करवाने के लिए तकद्दो की है, कोशिश की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, एक सियासी सवाल भी आपसे सर कि आप इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीम का हिस्सा भी हैं, आपके पास ओहदा भी है, लेकिन आपने अभी तक जो है किसी भी हवाले से बाकी जो हमारी मदर तंजीम है कोटली सतिया में, उसके हवाले से ना आपने पार्टी के सीनियर अरकान पे कोई दबाव डाला है, ना उनको मजबूर किया कि वो हमारी मदर बॉडी या यूथ विंग या वो खवातीन वो जो विंग है उसको बनाया। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोटली सतिया में तंजीम साजी नहीं हो चुकी। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मेरा जो ओहदा है जो मुझे दिया गया है, जो कि मैंने कभी नहीं मांगा, वो ये था कि अगर तंजीम साजी में कहीं गड़बड़ होती है या उसके ऊपर किसी के एतराज़ात होते हैं तो उसकी अपीलें मेरे पास आएंगी। तो बॉडी बनाना उनका काम है, उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है तो अपील आएगी तो हम सर आप उनसे मुशावरा तो करें कि मेरी तहसील को जो है वो पसमानदा रखा जा रहा है, मेरी तहसील के अंदर, लेकिन मेरे पास चूंकि कोई इलेक्टेड ओहदा नहीं है तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई किसी चीज़ को एनफोर्स नहीं कर सकते, उनके ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद कराने के हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं। सर मुकाबला बाहर से जफर सईद साहब सवाल सर मेरा नाम जफर सईद सत्ती है। तो बल्क वाटर सप्लाई से हट के सवाल है मेरा आपसे कि माशाल्लाह से आपकी बड़ी खिदमत है इलाके के लिए, तो बल्दियात आगे आ रहे हैं, तो आप तहसील आज़म के लिए खुद क्यों नहीं आ रहे? और दूसरा ये कि क्या तहसील आज़म का अगर आपकी पार्टी किसी को टिकट देती है तो आप उसकी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक कुछ लोग आपके इंतज़ार में हैं कि कुछ ऐसे भाई हैं जो तहसील आज़म के आपके इंतजार में हैं। जवेद साहब क्या फैसला देते हैं, उनको फैसले को देख के फिर जी मेरे ख्याल से मैं तहसील आज़म के पार्टी जिसको टिकट देगी करते हैं कि उम्मीदवार कंट्रोवर्शियल नहीं होगा और टिकट मेरिट की बुनियाद पर बुनियादी कारकुनों में से किसी को दिया जाएगा, हम उसकी बर्दाश्त करेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत सर। अब सभी मैं आपने इनवाइट किया तो अगर आप चाहते हैं तो बताएं ना, अगर नहीं चाहते तो ठीक है। 2 क्वेश्चन थी मेरे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लियर एंड शॉर्ट स्पीच। क्वेश्चन ये है कि जो पहले वाली आपने जो जिक्र किया है, जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, उसका क्या हुआ? और दूसरा ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली काफ लीग का था और उसमें परवेज अली साहब वज़ीर आला और उनका प्रोजेक्ट 2002 में ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में 2005 में उसको लॉन्च किया गया। क्या बेहतर है कि आप उनसे भी हैं और उनसे उनकी भी राय लें कि इसमें क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो आपका पहला सवाल है उसका तफसील से जवाब दे चुका हूँ, उसको रिपीट करने की वजह कोई नहीं है। परवेज अली साहब स्पीकर हैं, नहीं साथ के हवाले से मैं नहीं कह सकता कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरी उनसे भी बात हुई, वो चूँकि एग्जेक्टिव पोजीशन पर नहीं है इसलिए प्रैक्टिकल मदद लाइक पार्टी है, गवर्नमेंट की पार्टी है। गवर्नमेंट में स्पीकर को बड़ी पावर होती है, हर टिक करते हैं। देखिए हम चीज़ का ना गलत एक